पहले तो ओके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर हाँ सर, डायरेक्टर मैंने। जनरल ऑफ पुलिस एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। दूसरी हाँ। बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और ओके। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि पहले आप अपना परिचय दें और फिर आपने जो कॉल लगाया है उसका थोड़ा-सा मंतव्य बताएँगे, तो हमारी वार्तालाप फ्रूटफुल होगी और जो उससे ऊर्जा पैदा हो रही है, वो कुछ काम आगे बढ़ेगा। ओके सर। सो सर, अ, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं कह रहा था, मेरा नाम सर्वत मिश्रा है। हुँ, हुँ। एंड एंड मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करी है। ओह! ग्रेट, 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 या ग्रेट। आई सैल्यूट यू फॉर दैट। या ग्रेट, एंड ग्रेट। हाँ, हाँ। या एंड आई एम अ साइबर वॉलंटियर इन cyber crime department. हुँ, हुँ। and and I currently running a startup, EthicBiz Club, EthicBiz, the अच्छा, community. 1 मिनट मिस्टर शाह एक बार नाम फिर से बताइए ज़रा मैं ठीक ढंग से नहीं सुन पाया हूँ। सरस मिश्रा। नहीं क्या नाम? मिश्रा, हाँ, सरस मिश्रा। सरस मिश्रा। सरस मिश्रा जी, हाँ। आप तो बहुत ही काम के व्यक्ति हैं क्योंकि आज भारतवर्ष में हर कोई साइबर क्राइम से पीड़ित है। हाँ। तो आपसे आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन मैं एक छोटा-सा उपाय बताना चाहता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि एज़ ए साइबर एक्सपर्ट मेरा हाँ। विचार कितना पुख्ता है या ये सही ज्ञान के अभाव में एक खोखली बात मैं कर रहा हूँ। ओके ओके तो सर, बोलिए। तो मेरा ये मानना है कि इंटरनेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत डेवलप हुआ। ये हाँ। बात सही है? हाँ, सही है। और धीरे-धीरे इसने चारों तरफ जो है ना पैर फैला लिए और अब फाइनेंशियल से लेके हर चीज़ इसके थ्रू हो रही है, जिसके कारण हम्म। लोग धन की के लिए बहुत सारा साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में यदि हम एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और जोड़ दें और हैंडशेकिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अलग अकेले से कंप्लीट नहीं होगी, जब तक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का कंप्लायंस आप नहीं करते हैं। और सिक्योरिटी हम्म। प्रोटोकॉल में क्या रहेगा? इट विल आइडेंटिफाई योर मैक एड्रेस, इट विल आइडेंटिफाई योर आईपी एड्रेस, it will identify you, it will identify your location, it will identify your bank account also. So for every connectivity, you are supposed to pay 1 rupees as a verification. That 1 rupee can be adjusted by the service provider against their bill. So it may not be additional expenditure on the person. It may be just a modal formality with no pecuniary gain we are expecting out of it. If with this security protocol, the identity of the other side is 100% available with us, right? Now the third element we want that operating software will be having a button driven by the AI, so it will be all the time will be listening that communication, right? And that हाँ। communication may be recorded or it may be recorded at the choice of the person who is in communication. It could be both ways. I mean, that decision we can take at later stage, right? ओके। So the moment you feel this call is suspicious, pressing a button would be good enough. That will start all kind of the audio, video, screen recording, and artificial intelligence at the back will start interpreting the communication. So if you are asking any OTP, it will generate a fictitious OTP and which will be flashed on the screen. So the person in communication can read that fictitious OTP and other party cannot misuse it. At the same time, since everything is recorded, the evidence are being captured. The system would be enabled to forward this as an FIR. And on other side, there will be automatic registration of FIR.
There will be all evidences which will be captured, will be made available. If we consider the arrest is required, any volunteer nearby can be instructed to arrest the person with the authority, and for arresting he will get 10,000, 20,000, 50,000, whatever we decide. So without any additional burden on the police, we would be having the certainty of reporting, certainty of capturing evidence, and not only that simple crime, rather attempted crime in which no financial transaction could take place, but attempt itself is a crime. Hence, the whosoever is attempting to commit crime, whether by sending a message or a link or mm, making a call, whatever be the, or making or sending a mail, irrespective of the fact what kind of the issue he is exploiting, because the issue will depend on vulnerability of the person. If a old person, it may be life certificate verification. So it may be insurance, it may be lottery or whatever. I mean, these vultures, they will keep on generating appropriate topics and appropriate things which could be gullible, and at least few people could be made or be fooled. With this, there is a crime-free Bharat says that within 30 days, there will be prosecution process will be completed in which nobody has to go to the court. It will be distributed trial system. And there will be certainty of justice. So nobody would be in position to manipulate even judge, because we will be changing law. So there will be two kind of the appeal against the judge and appeal against the judgment. If someone is preferring appeal against judge, he is indirectly casting aspersion on the judge that he has not imparted justice, despite the fact that sufficient evidence were available. In that case, the judge has to come and explain and justify his judgment, and if he could not, then he will be depaneled. Here, depaneled means he will lose his judgeship. At the same time, there will be heavy financial compensation. Hence, judge cannot afford to impart injustice for ulterior consideration. Now, I would like to close at this, and I would like to request you to reflect from your cyber expert point of view whether my hypothesis is incorrect, or you feel it is on the sound technical footing, and things can be easily developed. So security protocol could be developed. Operating software will have that kind of the button where recording and things could be done. Recording can directly go to the cloud space, so that it will not be under control of the applicant. He cannot misuse it for blackmailing. That will be, if some crime has been committed, it will be reported with the certainty. Evidence will be sent to the concerned quarter. How would you like to react to that? सर बेसिकली मैं तो ये कहूँगा, ये जो आपका वो इंक्रिप्शन एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला सीन होता है, जो हमारा मेन होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है किसी भी चीज का। लाइक अगर कोई बंदा बात कर रहा है, नहीं, अभी आप अपना एडिशनल नॉलेज मत दीजिए, अभी तो केवल मेरी हाइपोथेसिस को एग्जामिन करिए आप। ओके, आपके हाइपोथेसिस आपने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि वो जो आपने एक बटन सिस्टम रखेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे साइड में। नहीं, पहले आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जो हमने हाइपोथेसिस है, हाउ मच यू फील दैट इज कन्विंसिंग? हाँ, आपने जो सिक्योरिटी हाइपोथेसिस दिया सर, बेसिकली आपकी सोच बिल्कुल सही है कि आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मतलब एक सिक्योरिटी लेयर ला रहे हो, लेकिन एक होता है अभी आज के समय क्या हो रहा है, लोग बाग जो है ना अपने जो है डीप फेक का यूज कर रहे हैं, या लोग बाग जो है मास्किंग का यूज कर रहे हैं। पीपल आर सिटिंग इन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड उसको कहीं कहीं से रीरूट कर रहे हैं और मास्क कर ले रहे हैं। दिस मास्किंग कैन बी अनअर्थड। हाँ, होता है सर, होता है, बट तो ये अनर्थ जो है ना एट द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कर लिया जाए, जिससे आइडेंटिटी, बैंक अकाउंट, एवरीथिंग इज एंड वेयर एवर वी फील दैट countries administration or government is in connivance with the criminals, then we will not allow that country to enter in
unless they commit that if any of the citizen of their country would be doing this, the person will be handed over for the investigation and for legal prosecution. क्या सर अब मैं समझ गया आपकी मतलब लाइक आपका जो आइडिया है बिल्कुल सही है, मैं आपको हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है, ठीक है। एज मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमारा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ना 7 लेयर पर डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सिक्योरिटी लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर होते हैं सर, ठीक है। किसी वेबसाइट में जैसे आप पेमेंट कर रहे हो, किसी भी पेमेंट सिस्टम में, लाइक हम ले लेते हैं यूपीआई का, अब हम यूपीआई में किसी को 1 रुपये नहीं तो 2 रुपीज जो भी भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो बंदा जब पेमेंट करता है ना तो उसकी आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। Saras, I would like to intervene once again, but I am saying you have not entered into any transaction. You are entering into a cyberspace. That time is these things will be captured by the. Okay. It will be captured by the service provider. Yeah, ISP. Okay. And then that will be the part of the communication. So this much information will be embedded in the communication itself. यस सर, आपका जो भी मैं आपने कहा, आपकी शुरुआत में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था बिल्कुल सही था, मैं मानूंगा आपकी, क्योंकि आजकल के जो साइबर क्राइम है ना वो काफी बढ़ रहे हैं, और हैंडल करना ना, पुलिस को हैंडल करना बहुत हार्ड हो रहा है, बिकॉज इतने। ये बताओ एक मिनट फिर से इंटरव्यून करूंगा। हमारे हाइपोथेसिस में पुलिस को बर्डन आपने 0 कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ किया है सर, किया है, बिल्कुल 0 किया है आपने। एविडेंस भी कैप्चर कर दिए, आइडेंटिटी भी कैप्चर कर दी, और सब उसको जो है ना अवेलेबल करा दिया, उसकी एफआईआर भी रजिस्टर करा दी। और पूरा जो है ना पूरा सिस्टम, ये पूरा अलग सा सिस्टम चाहिए होगा ना इसके लिए, तो आप एक अलग सा पूरा सिस्टम ही क्रिएट कर रहे हैं हम तो सिस्टम क्रिएट करने में क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो कोई नहीं है, बट इसके लिए हाई अप्रूवल होनी चाहिए एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू। बहुत सही बात कही। मतलब ये है कि हमें अपने दुष्ट नेताओं को नियंत्रित करने की एक मैकेनिज्म चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर वही चीजें थोप के रखी हैं जो अंग्रेजों ने आपको उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाई थी। डू यू एग्री विथ मी? या सर। क्यों वो प्रशासनिक व्यवस्था जो कि लॉर्डशिप के साथ थी, जो आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए थी, जो आपके ऊपर गलत निर्णय लेके आपको जेल में डालने के लिए थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को जो है बर्बाद करने के लिए थी, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए थी, उनको हैंग करने के लिए थी, बाय द सेम सेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम इज स्टिल ऑन थ्रस्टेड ऑन यू। वी क्रिएटेड 3 न्यू लॉ एंड देयर इज नो चेंज। इट्स ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। दैट्स द पॉइंट। सो इट मींस हम तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तब तक कुछ सुधार नहीं ला सकते हैं, जब तक कि ये दुष्ट राजनेता हमारी बात मानने के लिए तैयार ना हो। डू यू एग्री विद दिस? या सर, अब सवाल उठता है कि ये राजनेता ऐसा करेंगे, तो ये राजनेता बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अच्छे लोग ही नहीं हैं, क्योंकि इन्हें चुना ही गलत तरीके से गया है। तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, राइट, संकीर्ण राजनीति के आधार पर, और फिर एक फर्जी कॉन्सेप्ट लाया गया है विनेबिलिटी, जीतने की संभावना। तो जीतने की संभावना में क्या देखते हैं कि सारांश जो है दुष्ट है, शोषक है कि नहीं है। यदि दुष्ट और शोषक है तो भाई जीतने की संभावना है, राइट। यदि जो है सारांश जो है, यदि बाहुबली है जिसका आतंक हो, तो भैया जीतने की संभावना बहुत हाई है। यदि सारांश धनबली है, let me complete. It's a dramatization of the same situation. So it is because it is being recorded, so it is meant for bringing a right kind of the impact on the listener. Basically, it is less intended for the saransh. It is more intended for the globe at large, right? Okay. So यदि जो है सारांश धनबली है तो सबको खरीद लेंगे, तो आपकी जीतने की संभावना बहुत अच्छी है। यदि आप अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, तो आपकी जीतने की संभावना बहुत अच्छी है। तो इस आधार पर सारांश का चयन हो रहा है। इनको हम राजनेता कहते हैं। फिर ये दुष्ट राजनेता दारू बांट के, पैसे बांट के, साड़ी बांट कर, फ्री भी बांट के जीत रहे हैं, और जिनको मूर्ख बना के, जिनके वोट से जीत रहे हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी विप से, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पार्टी विप? हाँ, पार्टी विप समझते हैं क्या आप? हाँ सर। जैसे पार्टी कमांड जो है ना कोई भी आदेश जारी करेगी, पार्टी विप जारी कर देगी, यदि आप उसके खिलाफ जो है ना जाएंगे
तो आप यू विल बी ruined, आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ओके। सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब दे आर कंट्रोल बाय द पार्टी वेब। तो भाई साहब आप पार्टी के नुमाइंदे नुमाइंदे हैं या हमारे नुमाइंदे हैं? तो भैया डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यही है। या लेकिन इन्होंने तो इसको बदल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। तो आर यू, सारांश मिश्रा, आर यू लिविंग इन डेमोक्रेसी और आर यू लिविंग इन ए पार्टीक्रेसी? किसमें रह रहे हैं आप? हाँ? पार्टीक्रेसी पार्टीक्रेसी में रह रहे हैं। तो या यदि आपको पार्टी, एवरीथिंग कंट्रोल बाय पार्टी। एक मिनट, अब यदि पार्टी कृषि से आपको डेमोक्रेसी से एक छोटा सा संकल्प लेने से काम बन जाए, वो संकल्प क्या है? वो संकल्प है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। क्या सारांश मिश्रा जी, हम ये छोटा संकल्प भी नहीं ले सकते हैं कि हमें अच्छा भारत चाहिए? सर लेना चाहिए सर। नहीं नहीं, इसमें कोई कठिनाई है कि हमें अच्छा भारत, हम आपसे कुछ करा नहीं रहे हैं, आपसे चंदा नहीं ले हाँ। रहे हैं, आपको जुलूस निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको किसी का पुतला जलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके से कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलवा रहे हैं, आपको किसी कोर्ट कचहरी में केस लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जैसा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अन्ना हजारे जैसा जंतर मंतर पर धरना नहीं दे रहे हैं, किसानों जैसा रेल रोको और चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, और बिना कुछ किए, क्या सिर्फ इतना एक संकल्प ले लें कि हमें अच्छा भारत चाहिए और मैं 4 छोटे से उपाय कर रहा हूं, बता रहा हूं, जिससे आप 100 करोड़ हो जाएंगे, जिसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। तो सारांश, आपको नहीं लगता है कि आपको और आपके सभी मित्रों को, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को और आपसे जुड़े हुए जितने भी संगठन है उनके लोगों को जुड़ जाना चाहिए कि नहीं जुड़ जाना चाहिए? हाँ सर, जुड़ना चाहिए, अच्छी बात जुड़ना है। चाहिए। 4 छोटे से सरल उपाय क्या हैं? इसको हमने सत्यनारायण कथा कह दिया है। तो सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कहता है कि भाई साहब आप यूट्यूब खोलिए, उस पे क्राइम फ्री भारत सर्च करिए और ओके। सर्च करके जो है ना उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त की चैनल है जिसमें 7,000 से भी अधिक वीडियो हैं जो समझा रहे हैं कि 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत बिना किसी तकलीफ के देने की मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी है। राइट? ओके। अब फिर उससे कह रहे हैं कि भैया आपको एक संकल्प और लेना है कि आपको एक वीडियो हर दिन देखना पड़ेगा, और यदि वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक नहीं है तो उसे भाड़ में जाने दीजिए। यदि वो आपकी आत्मा के नजदीक आप पाते हैं तो उसे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए उनसे शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय पूरा हो जाता है। इसमें कोई तकलीफ है क्या? नो सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ। अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि भाई साहब अभी आपने जो चैनल सब्सक्राइब की है इसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो बच्चा पूछता है कि ये व्यास जी बताइए कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खोलें, क्योंकि हमको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता है। तो उसने कहा कि आप वीडियो के नीचे एक टाइटल देखते हैं, उसमें पतले अक्षरों में लिखा रहता है मोर, MORE, मोर। यदि आप मोर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शली खुल जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बारीकी से देखिए, उसके अंत में भी पतले अक्षरों में MORE, मोर लिखा है, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो ये बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो संदेश है उसे पूरा अच्छे ढंग से पढ़िए और उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उसे क्लिक कर लीजिए। ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब सत्यनारायण को टोटल 4 अध्याय ही हैं, राइट? अब सत्यनारायण हाँ। कथा का तीसरा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, जो अभी आपने ऐप डाउनलोड की है, जिसमें आपने अभी फोटो डाला है, अपने बारे में 4 लाइन लिखी हैं और अपना पोस्टल पिन कोड डाल के आप सदस्य बने हैं, उसी ऐप को खोलिए। उसमें नीचे दाहिनी ओर तेरी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक करिए। प्रोफाइल को क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा और नीचे 3 जो है शेयर करने की चैनल दी गई हैं, जिसमें मैसेज भी ऑटो जनरेट होता है, आपकी लिंक भी ऑटो जनरेट होती है। जो भी उस लिंक से जुड़ेगा वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य के साथ साथ उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपके को उसमें 100 नंबर मिलेंगे।
10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी बन जाएंगे, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। और यदि चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनने की इच्छा है, तो इसमें लग जाइए और स्कूलों में जाइए, कॉलेज के पास जाइए, धार्मिक संस्थानों पे जाइए, कथावाचकों के साथ जाइए, एनजीओज के पास जाइए, जो भी जहाँ लगा हुआ है, उसको जो है ना एक कथा सुनाइए और उसको भी जोड़ने की कोशिश करिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय खत्म हो जाता है। अब चौथा और अंतिम अध्याय कह रहा है कि अभी जिसको आपने संदेश भेजा है, उसको फोन लगाइए और उससे इतना ही पूछिए कि अच्छा भारत चाहिए। अच्छा भारत चाहिए तो संकल्प दिलाइए और ये 4 सरल से उपाय कर दीजिए, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो 9 जाएंगे। दिन में 100 करोड़। 9 ठीक है। दिन में 100 करोड़, बशर्ते सब लोग अपने संकल्प को पूरा करें। यदि संकल्प जुड़ जाते हैं और आगे का काम नहीं करते हैं चारों वाला, तो आप 9000 साल में भी 100 करोड़ नहीं होंगे। आगे बात समझ में? हाँ सर, अब यदि आप 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता आपके चरणों में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे जो सर। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो भी आप कह रहे हैं वो सबके नियम कानून बना देंगे कि नहीं बना देंगे? हम्म, अब एज्यूम करिए कि वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो ये मॉडल उसकी भी व्यवस्था दे रहा है। अभी हमने कहा था ना कि जो अधिक से अधिक जोड़ने वाले 543 लोग जो है वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा और हम अच्छा। 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के संकल्प लेंगे कि ये जो हमारे भागीरथी प्रयास करके चंद्रगुप्त बने हैं, हम इन्हें संकल्प के साथ जिताएंगे और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पे बटन दबाएंगे। तो बताओ हमारे पूरे 543 के 43 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे सर। आप ये बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हाँ, हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हाँ, हाँ, हाँ। और इनमें से जो 82 लोग जो उनमें मेरिट में भी ऊपर होंगे, उन्हें महाचंद्रगुप्त कहेंगे, वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो केंद्रीय आप मंत्री बन बताइए, जाएंगे। इतनी आसानी से आप सांसद बन रहे हैं, इतनी आसानी से आप केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं और सब कुछ आपके हाथ में है। आपको सारांश मिश्रा जी ये बताइए, क्या मैथिली शरण गुप्त को मस्का लगाने की जरूरत है? नो सर। कोई जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, फिर भी अच्छा भारत नहीं चाहते हैं आप? और हमारा कहना ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं करते रहें और साथ में जो है ये भी करें। ठीक है ओके ना? सर। मैं आपको कुछ देर बाद फिर दोबारा फोन लगाऊंगा और तब हम चर्चा करेंगे कि आपकी क्या सहभागिता हो सकती है इस मॉडल में। और अभी हम इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे और हमने एक प्रोटोकॉल रखा हुआ है कि जब भी हम वार्ता करते हैं तो सामने वाले से चर्चा के बाद उसका क्या विचार बना, उसका संदेश जरूर हम लेते हैं। तो सारांश मिश्रा बेटे, आपका देश के नाम क्या संदेश है? सर, अच्छा भारत होना चाहिए। क्या उसके लिए 4 सरल उपाय करेंगे? जी सर। क्या आप चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त भी बनना चाहेंगे? जी सर, बट अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन हाँ बनना चाहेंगे अगर हमारे पास टाइम निकाल के। अरे भाई, आप तो लोगों को जोड़ो, बाकी लोग सो रहे हैं तो अपने आप बन जाओगे। देखिए, हाँ। यदि खरगोश सो रहा है तो जीतना किसको है? कछुए को। कछुए को। तो सारे जी कम प्रयास के साथ भी चंद्रगुप्त बन जाएंगे। हाँ। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? या सर। क्योंकि बाकी लोग सो रहे हैं। हाँ। ओके बहुत सर। सुंदर संदेश आपने दिया। सारांश मैं आपको 1-2 घंटे के बाद फिर से फोन लगाऊंगा। हाँ सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।